So we had learned in this chapter number 10 about perimeter, है ना? Perimeter of polygon. Polygon means which type of figure you can say polygon? Polygon means what? Back side lights on करो, back side की lights. What is polygon? Polygon is a closed figure made up of 9 segments. Made up of 9 segments. Means if 3 sides are there, it is known as Triangle. 4 are Triangle. rectangle and square. 5, Rectangle. 6. Hexagon. Okay. And what is the formula to find out perimeter of rectangle? Perimeter of rectangle I am asking about. Perimeter of rectangle का formula क्या है? Who will tell me? 2 into length plus breadth. We had learned about the formula of perimeter for any regular figure also. What is it? Any regular figure. Formula to find out perimeter of any regular polygon. The general formula. कल ही मैंने बताया था. Number of side multiply length of the sides. Number of sides multiply length of the side. This is the general formula to find out the perimeter of any regular polygon. कोई भी regular polygon हो तो उसका हम ये perimeter के formula से perimeter find out कर सकते हैं. And the simple method to find out perimeter is just add the measurement of all the sides and you will get the perimeter of any closed figure. Then after we had learned about the area. Area भी हम पढ़े. Area में क्या पढ़े कल हम? Using graph paper. How to find out the area of a closed figure using graph paper. That we had done and we have solved exercise 10.2 yesterday in our regular class. Today moving ahead. जैसे कि हमने perimeter दो तरीके से ढूंढना सीखा. One is by adding the measurement of sides and another is using the formula. है ना? Same way area भी we had learned yesterday how to use area using graph paper. That we had done for any closed figure. And just now today we are going to learn about the formula of area. Formula of area. And for that, first of all, they have used once again the graph paper to find out the area. यहाँ पे आप देखोगे तो area of rectangle is given. Now how to find out the area of rectangle? So here graph paper is used. And as I explained you on the graph paper, during these two darkened lines, it makes one square there. And if the measurement of the square is not given, then we take it as a square unit. Okay. Over here a rectangle has been drawn, but in the vertically they have taken 5 squares. How many squares? 5 squares. And horizontally. And vertically it has taken 3 squares. So I repeat, horizontally 1, 2, 3, 4 and 5 squares are there. And vertically 1, 2 and 3 squares are there. And as we learned yesterday, area means this portion which is covered by the closed figure. The definition which we had learned yesterday about the area was, क्या थी definition? Definition of area. We have underlined it yesterday. हमने underline भी किया. The amount of surface occupied by a rectangular area. Amount of surface मानी ये पूरी surface यहाँ से यहाँ लेके amount of surface occupied by any closed figure is known as area. ठीक है? मानी ये पूरा हमको लेना है if you want to find out the area of the rectangle. Means क्या हो गया? Horizontally ये area हो गया, vertically ये हो गया. So here 5 squares are there and your 3 squares are there. So to count the area,
we have to multiply these two. Means 5 को 3 से multiply करो तो ये पूरा एरिया आ जाए, ठीक है? तो it is 50. But now what will be the unit here? Unit क्या आएगा? So unit is, here it is given centimeter. What is given here? Centimeter. But in perimeter what unit we have added? Perimeter में हम क्या unit लिखते थे? यूनिट क्या लिखते थे वो पूछ रही हूँ. सेंटीमीटर लिखते थे. एक की लड़की आंसर दे रही है, बाकी सब सो गए क्या क्लास में? सेंटीमीटर लिखते थे हम लोग. एडिशन जब करते थे रेक्टेंगल का अपने पैरामीटर ढूंढा. सपोज दिस इज 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर. नींद आ रही है तो जाके फेस वॉश करके आओ. 3 plus 2 plus 3 plus 2 मानी 10 सेंटीमीटर. ऐसा हम लिखते थे. दिस इज फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. एंड टुडे वी आर लर्निंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया मीन्स द सरफेस और द अमाउंट ऑफ सरफेस occupied by any closed figure. So this is the amount of the surface occupied by this closed figure. These area we have to calculate. For that, its length and breadth must be multiplied with each other. So यहाँ पे क्या हो गया? सेंटीमीटर multiplied by सेंटीमीटर. जब सेम यूनिट का मल्टीप्लिकेशन होता है तब how many times it multiplied over here? तो here it multiplied 2 times. 2 times multiply क्या है? तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं. स्क्वायर कैसे लिखते हैं? तो स्क्वायर इन सेंटीमीटर के बाद में 2 नहीं लिखना है, थोड़ा सा ऊपर जाके 2 लिखना है. हाउ टू रीड दिस यूनिट? तो सेंटीमीटर स्क्वायर. और यहाँ पे स्क्वायर है. 15 स्क्वायर होंगे. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 squares occupied by this rectangle. ठीक है ना? तो 15 यहाँ कैसे आया? 5 multiply 3. तो इतने स्क्वायर है. तो इसी यूनिट को आप इस तरह से भी लिख सकते हो. क्या? स्क्वायर सेंटीमीटर. माने व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया? तो हियर इट कम्स इन सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर. व्हाई? बिकॉज इट इज गिवन इन centimeter. What if it is given in centimeter? If instead of centimeter here it is given in meter, then अगर यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह पे मीटर दिया है तो यूनिट क्या आएगा? एरिया का यूनिट क्या आएगा वो बोल रही हूँ. स्क्वायर मीटर या तो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या तो स्क्वायर मीटर. ठीक है? तो यूनिट, एरिया का यूनिट मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड. यूनिट क्या आता है? सीधे बैठो. यूनिट क्या आता है? तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर. हाउ मेनी टाइम्स इट मल्टीप्लाई? 2 टाइम्स. दैट्स व्हाई सेंटीमीटर जो भी यूनिट है, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर लिखो, मीटर है मीटर, किलोमीटर है किलोमीटर. बट उसको स्क्वायर फॉर्म में दिखाने के लिए वी हैव टू राइट डाउन 2 इन दिस वे. और आइदर इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन राइट स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर ऑल्सो. बट इफ एरिया का यूनिट ऑलवेज स्क्वायर फॉर्म में ही आता है. कोई भी क्लोज फिगर हो उसका यूनिट जो है वो स्क्वायर फॉर्म में ही आता है. चलो आगे बढ़े हम. तो ये हो गया. देन वन एक्सरसाइज इज गिवन ओवर हियर. फिल इट अप. चलो कंप्लीट करो ये एक्सरसाइज. टेबल दिया है वो कंप्लीट करो.
आएगा फर्स्ट में? कर लिया 7। किसी को बोलना नहीं कि मैडम वॉज अवर मैथ्स टीचर। 12। 7 कौन बोला? खुद को लगाओ एक जोर से। What are you finding? Area is written over here. 7 कर दिया। जिसने भी गलती की खुद को एक जोर से मारो। बड़े बगे करते हो सब। What is asked over here? Area. तो आंसर क्या आएगा? Only 12. Unit. नंबर। यूनिट क्या आएगा एरिया का? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैसे आएगा? अब भी मैंने 10 मिनट समझाया, वो गया ऊपर से। सेंटीमीटर स्क्वायर, और यू कैन राइट 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हो आप। चलो नेक्स्ट। अभी तो सब बोलेंगे क्योंकि एक मैडम ने बना दिया। So complete these blanks. So what we have done over here? 3 multiply 4 means length multiply breadth. 7 multiply 5 means length multiply breadth. 5 multiply 3 means length multiply breadth. So from that we get the formula to find out the area of rectangle is length multiply breadth. अंडरलाइन करो इस स्टेटमेंट को, या ब्रैकेट करो, हाईलाइट करो, जो भी करना है करो। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। कीप इट इन योर माइंड। पैरामीटर में व्हाट वी हैव डन? पैरामीटर में हमने क्या किया? 2 into bracket length plus breadth। एंड एरिया में क्या किया? 2 नहीं व्हाट इट? ये दिमाग में रखना, पेरीमीटर की फॉर्मूला एरिया में नहीं आ जाए, एरिया की फॉर्मूला पेरीमीटर में नहीं आ जाए। एरिया मीन्स अमाउंट ऑफ सरफेस occupied by closed figure and perimeter means length of the boundary of the closed figure। ये दिमाग में रखना। और सिर्फ बाउंड्री है पेरीमीटर में, that's why we add the number, and over here total area है, that's why we multiply the numbers। what it multiply क्यों किया और एडिशन क्यों किया वो भी क्लियर होना चाहिए। आप लोग है ना ध्यान नहीं देते हो, टीचर पढ़ाते हैं तब इसीलिए नहीं आता है। हर कोई कुछ न कुछ करता रहता है, कोई लिखता रहता है, कोई और करता रहता है। दैट्स व्हाई जब भी मैं क्रॉस चेक करती हूँ आपका रिस्पॉन्स ही नहीं आता। I told so many times कि whenever your teachers are teaching you, you have to pay attention to them only। कुछ भी और मत करो, उसी वक्त सिर्फ टीचर पे ध्यान दो, और मेंटली आप क्लास में प्रेजेंट होने चाहिए। फिजिकली तो सब हो, लेकिन दिमाग से नहीं होते हो, इसलिए ये होता है, दिमाग कहीं और चल रहा है। अभी मैं बोल रही हूँ तो ये इरेज कर रही है, ये पेन से खेल रहा है, अभी नमन कुछ सॉक्स कर रहा है, ऐसा सब चलता है क्लास में। इसलिए आपको जब टीचर क्रॉस करते हैं तो आंसर नहीं आते। ये जो मैंने आज आपके आके इमीडिएट पूछा कि वी हैड लर्न द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर, जो मैंने कल भी आपके वही शुरू किया था। कल का भी आप वीडियो देखोगे तो मैंने शुरुआत वहीं से की। फिर भी आज आप लोग ब्लैंक हो, तो अभी मैं क्या करूं? इंजेक्शन तो है नहीं मेरे पास कि आपके दिमाग में डाल दूं। आपकी तरफ से जो रिस्पांस मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। एक ही बात कितनी बार मैं बताती हूँ क्लास, एक ही बात, और इट मीन्स कि अभी भी जो 1.5 साल आप आराम के मूड में लेके आए हो वो अभी भी आप लाइनअप नहीं थे। कई बार बोला मैंने रिसेस के बाद मैथ्स का पीरियड ही नहीं रखने वाली।
सेकेंड टाइम, बिकॉज कि रिसेस में ऐसा खाना खा लेते हो, ज्यादा पानी ज्यादा पी लिया, अभी नींद आ गई। तो ये हो गया फॉर्मूला टू फाइंड आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। अभी बोलो चलो स्क्वायर में क्या आएगा, सेम लॉजिक, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर? टेक्स्ट बुक्स के वो लेट के बोल दिया, अगर टेक्स्ट बुक में नहीं देखा होता तो क्या बोलते कि लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, आपने टेक्स्ट बुक में देख के बोल दिया, इसलिए साइड मल्टीप्लाई साइड आ गया है, कहाँ नहीं दिया? और फिर तुरंत ही है टेक्स्ट बुक में, वही मैं ढूंढना चाहती थी कि कौन लॉजिक बढ़ाता है और कौन ऐसे देख के बोल देता है, तो देख के बोल दिया सबने। देखो एरिया यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ किया है, स्क्वायर का एरिया हमें ढूंढना है, तो हाउ वुड बी? लॉजिक रिमेन सेम, साइड मल्टीप्लाई साइड, लेकिन लेंथ यहाँ पे स्क्वायर की जो लेंथ है वो ऑल फोर साइड आर ऑफ इक्वल मेजर, यहाँ पे भी 4 स्क्वायर्स है, यहाँ पे भी 4 स्क्वायर्स, तो 4 4 4 4 कितने हो गए? 16। व्हाट विल बी द यूनिट हियर? सेंटीमीटर और 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। लॉजिक सेम रहा, वॉट एवर वी हैव डन इन रेक्टेंगल, द सेम लॉजिक इज अप्लाइड ओवर हियर ऑल्सो, साइड मल्टीप्लाई साइड। रेक्टेंगल में हमने क्या किया? द सेम थिंग, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, मीन्स ये भी साइड है, ये भी उसकी साइड, तो साइड मल्टीप्लाई साइड, that is a common logic to find out the area, but length multiply length या length multiply breadth आप यहाँ भी लिख सकते हो स्क्वायर के लिए भी, that is also applicable, but in square all sides are of equal measure, so that's why you can write down length multiply length भी लिख सकते हो, side multiply side भी लिख सकते हो, और साइड मल्टीप्लाई साइड इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, सो अंडरलाइन इट और ब्रैकेट इट, व्हाटएवर आप जो करना चाहो उसे अंडरलाइन कर सकते हो। सो दीज आर द फॉर्मूला टू फाइंड आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। ये किया आप लोगों ने अंडरलाइन? हियर इट इज ऑन दिस पेज, area of the square is equal to side multiply side. So आगे बढ़े with the exercise 10.3. In exercise 10.3, number 1, pay your attention over here everybody. Find the area of rectangles whose sides are, means over here 4 different measurements are given and the figure is rectangle, that is also given. So what to do? We have to write down the formula of area of rectangle, put the value which are given over here and find out the answer. So first of all, what shall we do? हमें पहले ऐसे लिखना है, ये आंसर 1 में, आंसर 1 उसमें क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ लेंथ मल्टीप्लाइड बाय, now pay your attention here, now different 4 measurements are given. ये तो अभी हमने किया, प्रीवियसली टेबल में ये था, टेबल जो आपने फिलअप किया ना उसमें फर्स्ट वन क्वेश्चन यही था 3 and 4, तो सेम आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। आंसर ए में क्या आएगा, 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, तो आंसर 12 सेंटीमीटर, बराबर है ना। सेकेंड, पे योर अटेंशन हियर, समबडी इज टॉकिंग, 12 मीटर एंड 21 मीटर, मानी क्या आएगा, 12 मीटर multiplied by 21
आंसर क्या आएगा? 21 घर में बैठ गए सब लोग। मेरे हिसाब से 252 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेना आप। चलो सी, अभी सी में क्या है? 2 किलोमीटर। मैंने यहाँ गलती की, किसी का ध्यान नहीं गया क्या? क्या करें? मीटर लिखना, कोई बोला नहीं। 2 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 3 किलोमीटर। सो व्हाट विल कम? 5। अभी कोई बोला 5 कौन बोला? We are finding area, not distance. चलो, now pay your attention for D. 2 meter 70 centimeter. 140. बोल दिया सबने, वेरी गुड। 140 रॉन्ग हो। क्यों रॉन्ग हो? बोलो क्यों रॉन्ग हो? 140 सब रॉन्ग हो। क्यों रॉन्ग हो वो ढूंढो। मानी दोनों वैल्यू डिफरेंट यूनिट में थी। बोथ द वैल्यूज आर इन डिफरेंट यूनिट। वी कुड नॉट अप्लाई एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन विथ डिफरेंट मेजरमेंट्स। मेजरमेंट ही डिफरेंट है। देखो, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर, और ये हम 5th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में पढ़ के आए। याद करो, वहाँ पे लेंथ चैप्टर था 5th स्टैंडर्ड में। मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टोमीटर, डेका, किलो, हेक्टोमीटर। सो वो कहाँ गया? तो वो कहाँ गया? पढ़े कि नहीं हम लोग? तो फिर यहाँ वहाँ पे मैंने आपको ये भी समझाया था कि मीटर के साथ मीटर ही ऐड होता है, सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर भी ऐड होता है। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन इफ यू वुड लाइक टू अप्लाई, first of all you people have to check all the values which are given over here are in the same unit or not. So what to do? यहाँ पे क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। How could we convert? Okay. Method 1, 2 methods are there. Method 1 में क्या आएगा? तुम्हें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर इज इक्वल टू 200 आएगा। 2 मीटर इज इक्वल टू 200। 2 मल्टीप्लाई 100 तो 200 सेंटीमीटर। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर आप 200 मल्टीप्लाई बाय 70 करो तो क्या आएगा? 14,000 कैसे आया? 2 मल्टीप्लाई 7, 14, 1, 2 and 3 zeros we have right. So 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेथड 1 हो गई। अभी मेथड 2, मुझे ये नहीं करना है, मुझे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करूँ? Pay your attention over here. अभी हम उल्टा जाएंगे। क्या? अभी रुको, अभी आगे भी आंसर देना। अभी रुको, अभी आगे का आंसर देना। चलो, तो 70 सेंटीमीटर, तो उसका कितना आएगा? कौन बोलेगा? अभी बोलो, अभी भी चुप करो। बोलने में तो किसी का कंट्रोल है नहीं, हम जो भी चाहे वो बोल सकते हैं। मिलीमीटर है क्या यहाँ पे?
बताओ, गप्पे मत लड़ाओ। आंसर क्या आएगा? 7 मीटर। बोलो बस। 7 मीटर। 7 मीटर। क्या आएगा? ये 1 मल्टीप्लाई 70 करना है और यहाँ 100 से डिवाइड करना है। आंसर 70 डिवाइड बाय 100 आएगा। कितने गप्पे लड़ाए? कोई बोला 70, कोई बोला 7, कोई 700, 270, ऐसा भी आंसर दिया किसी। और ये फ्रैक्शन आप थर्ड स्टैंडर्ड से पढ़ते आए। फ्रैक्शन जो है वो थर्ड स्टैंडर्ड का टॉपिक। फ्रैक्शन गप्पे मत लड़ा प्लीज, मैथ से बी सिंसियर व्हेनेवर यू लर्न द मैथ्स। ये फ्रैक्शन आप थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ के आए। वहाँ पे टीचर एप्पल दिखाते थे आपको और बताते थे कि इसका मैं इक्वल 4 पार्ट्स करूँ तो एक पार्ट को क्या बोलूंगी कि 1 आउट ऑफ 4, सो 1 अपॉन 4। ऐसे टीचर ने आपको फ्रैक्शन की शुरुआत की है, तो वो फ्रैक्शन का नॉलेज यहाँ पे लेना है। तो 70 अपॉन 100। अभी मैं डेसिमल में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी? यू विल टेल। डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल फ्रैक्शन 0.70 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हुआ? इज इट सेंटीमीटर? या यस? बोल दिया यस। हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, तो फिर क्लास में हो ही नहीं आप लोग। 0.70 मीटर आएगा। अभी यहाँ पे 2 मीटर लेना है मुझे और उसके साथ 0.70। तो एरिया क्या आएगा? एरिया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0.70। करो, आंसर क्या है? आंसर क्या आएगा? बोलो। 1.40 स्क्वायर मीटर आएगा। क्या आएगा? 1.40 स्क्वायर मीटर। और यहाँ पे आपको डिफिकल्टी हुई तो आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद दिस मेथड। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो और फिर सॉल्यूशन ढूंढो। गॉट इट? समझ में आया सबको? ये मीटर सेंटीमीटर वाला बहुत इजी है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके सबको ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना। क्लियर हो? सॉल्यूशन में से देख लेंगे मैडम भेजेंगे ना पीडीएफ को, है ना? वो थोड़ी ना करना है, लेकिन आप जो भी सॉल्यूशन से कॉपी करता है ना वो मैथ्स में फेल होगा, मैं बता दूं। जो खुद करता है वो अच्छे मार्क्स से पास, और जो सिर्फ कॉपी करता है वो फेल होगा। जो समझ के कॉपी करता है वो पास होता है। मैं आपसे सॉल्यूशन ही नहीं भेजू, चलेगा? खुद करो। एक्चुअली मैथ्स में वही मेथड है कि टीचर को सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है, प्रॉब्लम जो है वो खुद सॉल्व करना। तो ब्लैंक रहेगी ना नोटबुक, तो फिर चेक करने बैठेंगे तब ब्लैंक रहेगी नोटबुक, तो फिर क्या करेंगी? फिर उस टाइम पे मुझे गुस्सा करना, आप पे कुछ बोलना, डांटना, मेरी भी हेल्थ पे इफेक्ट होगा, आपको भी होगा। इससे अच्छा है कि मैं सॉल्यूशन भेज देती हूँ। चॉइस इज योर्स, चॉइस आपकी है। आपको मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप सॉल्यूशन से लिखो, लेकिन
जो बच्चे खुद करना चाहते हैं वो सॉल्यूशन का वेट नहीं करेंगे, वो पीडीएफ नहीं ओपन करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे। और पेन रुक गई कहीं पे, मैं ऐसा नहीं बोलती कि सब आना चाहिए, पेन कहीं पे रुक गई, एट दैट टाइम यू हैव टू चेक द सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या आएगा, मैं कहाँ रुको गलत हूँ, और वहां से वो आगे बढ़े, दैट इज ओके। बट डायरेक्टली आप पीडीएफ से कॉपी करो तो वो मत करो। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर्स whose sides are। अभी स्क्वायर में तो एक ही मेजरमेंट रहेगा, बिकॉज ऑल 4 sides are equal। So what to find? Side multiply side। 10 multiply 10 तो क्या आएगा? 100। You need 100 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे मीटर है क्या? मैडम ने बोला तो सेंटीमीटर कर दिया। 14 मल्टीप्लाई 14 आंसर क्या आएगा? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा यहाँ। एंड 5 मीटर 25 सेंटीमीटर नहीं यहाँ पे, 25 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी कोई 10 बोला, अभी मुझे सुनाई दिया कोई 10 बोला। चल क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर एज गिवन बिलो। 1, 2 and 3। Here only we will check one thing, के मीटर तो मीटर, मीटर 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 मीटर, ओके। ऑल आर गिवन इन द सेम यूनिट, तो आपको वो टेंशन है नहीं कन्वर्जन वाला, जस्ट यू मल्टीप्लाई करो। नाउ द क्वेश्चन आस्क्ड ओवर हियर, व्हिच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड व्हिच वन हैज द स्मॉलेस्ट। तो जो भी कम आए वो आपको लिखना है कि रेक्टेंगल हैविंग मेजरमेंट दिस इज स्मॉलेस्ट वन and rectangle having measurement is whatever is the largest। What if कर लोगे? Question number 3। चल 4, the area of a rectangular garden 50 meter long is 300 square meter। Find the width of the garden। क्या करो? What is the question? Read the question thoroughly। The area of rectangular garden, okay, क्या है? तो 300 स्क्वायर मीटर। उसकी लेंथ दी है हमको क्या? 50 मीटर। What to find? बराबर है, मानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू क्या आएगा? 300, ओके। और लेंथ दी है 50 और ब्रेथ ढूंढनी है, ओके। So length multiply breadth is equal to area, वो तो बराबर है। लेंथ क्या है? 50 मीटर, ब्रेथ नहीं दी है, एरिया दिया है 300 बराबर स्क्वायर मीटर। मुझे 50 यहाँ से रिमूव करना है, व्हाट आई विल डू? 50 से डिवाइड करो बोथ द साइड्स, तो ये 50 निकल गया, ब्रेथ आ गया, यहाँ पे क्या आएगा? 60 मीटर, 600 नहीं आएगा, 60, ओके। क्या आएगा? 60 मीटर आएगा, बराबर है। 60 आएगा कि 6 आएगा? ढूंढो। 6 आएगा, 60 नहीं आएगा। 5 6 are 30, 6 आएगा। मीटर स्क्वायर कैसे आएगा? ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, एरिया नहीं है। एरिया तो ऑलरेडी गिवन, जो हमने 300 ले लिया वहां। सो ये लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। लेंथ इज गिवन 50, ब्रेथ इज नॉट गिवन, सो ब्रेथ वी हैव कीप इट एज इट इज। एंड 300 फिर हमने रिजॉल्व किया। क्यों रिजॉल्व किया 50 को? बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट ब्रेथ, हमें ब्रेथ फाइंड आउट करना है। तो 50 को या तो राइट साइड ले जाओ, डिवीजन में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, या तो ये मेथड मैंने आपको पहले आगे के क्वेश्चंस में समझाया कि ब्रेथ के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है 50, तो मुझे 50 को यहाँ से रिमूव करना है।
तो आई विल डिवाइड इट विथ 50। मैं क्यों डिवाइड कर रही हूँ? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो मुझे डिवाइड करूंगी तो ये 50 कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे ब्रेक छूट जाएगी। राइट साइड पे भी मुझे वो अप्लाई करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज देयर इज इक्वल साइन बिटवीन दिस टू। गॉट इट? तो लेफ्ट साइड से 50-50 कैंसिल हो गया। राइट साइड पे सिंप्लीफाई करो, 300 को 50 से मल्टीप्लाई करो, 56 300 और आगे क्या आया? 6। बराबर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आज हमको 6 तक कंप्लीट करना है, लेकिन मेल हो गया ना हमारा, तो आज सबको 4 तक कंप्लीट करो। 5 और 6 कोशिश करना कोई बच्चा जो भी कर पाए वो कंप्लीट कर देना। कल हम समझ लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। Yes, ma'am.